आपका आज की वीडियो में। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है हाउ इंडिया क्रैश अमेरिकन पेमेंट्स इन अफ्रीका। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। The Indian most famous, the UPI, is now going to Africa. How is this going to change Africa, and how also is this going to make India benefit from Africa? UPI is one of the best payment method I've ever seen in my whole life, and as a regular user of it, when I first saw about it going to Africa, it was like, oh my god, it's happening. The best thing is coming actually to Africa. And obviously, based on my judgments, it's going to beat so many other payments method which we've been having for so many years. PayPal, Visa, MasterCard, all of them have advantages, but UPI came to simplify much more things, and especially using devices which are friendly, mobiles. How did they get into Africa first? I think India saw the potential of Africa and how growth of using mobile phones is very fast in Africa, and much more because so many international payment methods are not yet so much used in Africa. The ones which are mostly used are the local ones with mobile money, and those works only across one country. If Visa failed to make payments in Africa from Africa to outside so easy, and UPI comes to do it, that's already money gained so much for the side of India, and at the same time facilitating Africans who majority of them use mobiles rather than cards which need you to pay with a POS, that's Visa and other payments method. UPI just needs your mobile, which you have to just scan and do your payments, and that might be exactly the same thing for do auto payment on a monthly basis. I don't know if you're Netflix or Spotify, any other thing that it might be, and this is actually a life-changing opportunity for African countries. Now, some countries like Namibia have already agreed to start to work on it, to incorporate it, and countries like Ghana also have started the discussions of bringing it inside, and Nigeria, and there is nothing I could be much more excited for to see such a payment method being used in many African countries. Seeing what India have done with pushing UPI to African countries now shows and proves to me that India is literally in the race of winning the world now. India is no longer playing the games of winning in India only. They are now building things which their aim is literally to win the whole world. Remember, recently UPI also had to go across European countries like France, and if they are now trying to make it global and international, just understand that they are no longer playing the game of making something for Indians, but now they are playing a game of making something literally for the whole world. I just wish in the same way India can be again way too much more open to do trade the exact same way with African countries and simple local commerce. I think Africa is the next place that India should invest much more, because we have just so much in common to share. If something have won and succeeded in India, it has more chance of succeeding in Africa, and I think UPI is going to very much succeed in Africa. Thanks so much for being here. Catch you next time. रिसेंटली जो है G20 का जब समिट हुआ था इंडिया में, तो तब ये चीज़ जो है हमें देखने को मिली थी कि इंडिया ने जो है G20 को G21 कर दिया, और उसमें अफ्रीकन यूनियन जो है उनके प्रेसिडेंट को या उस एक पूरी यूनियन को जो है इंक्लूड किया गया। और अब जो है आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो भाई अफ्रीका में UPI जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवाने जा रहे हैं। नो डाउट भाई इससे जो है इंडिया की एक सॉफ्ट पावर जो है उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें UPI की, तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो भाई 2023 में रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसकी बनी थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना बिल्कुल था। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। और अगर आज के टाइम में हम लोग देखते हैं तो मतलब एज ऑफ जुलाई 2024 जो अभी तक ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, बताओ मौजूद वो लगभग जो है 14 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो हो चुकी हैं, जिसमें जो है पैसे 20.45 लाख करोड़ जो कि लगभग 20.45 ट्रिलियन रुपए बनते हैं, इतनी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं, जो कि NPCI की जो है उसकी तरफ से जो है ये डाटा जो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये डाटा जो है वो सामने आया। लेकिन अगर हम लोग बाकी कंट्रीज की बात करें तो मोर देन 10 कंट्रीज़ में जो है अब UPI इस्तेमाल हो रहा है, जैसे अब अफ्रीका में भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो डेफिनेटली इससे आपकी जो पावर है वो और ज़्यादा जो है वो मज़ीद आप कह लो कि डिफरेंट कंट्रीज़ तक जाती है। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे एक चीज़ जो बड़ी कॉमन लगी जितने भी कंट्रीज़ यूज़ करते हैं और फीडबैक जो आपको एक मिलता है, और वो ये कि UPI बहुत ईजी
वे है कि जो आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है कि यूज़र फ्रेंडली होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से इस ऐप को डिज़ाइन किया गया और लोगों को एक एक्सेस दी गई, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग जब डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन डायरेक्ट आपके बैंक से लिंक होना, फिर ट्रांजैक्शन ईजिली, इनफैक्ट स्कैन करो, आपको बस अपने मोबाइल की ज़रूरत है, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं इसके। आजकल की लाइफ में अगर देखा जाए तो यूपीआई बहुत अहम भूमिका हर किसी की लाइफ में, जहाँ पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना एक भूमिका जो है वो निभा रहा है। ये देखें, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई आप सर्विसेज जो है वो लोगों को जो है वो किस तरह की जो है वो दे रहे हैं। अभी जैसे जो है हमने जब इसे इंडिया में लॉन्च होते हुए देखा, खैर लॉन्च तो हमारे करियर से पहले ही जो है हो चुका हुआ था, लेकिन जो है अगर देखा जाए तो भाई कोरोना के टाइम पर आकर लोगों ने जो एक कैशलेस जो ट्रांजैक्शंस जो है उसका जो है उस टाइम पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको इस्तेमाल देखने को मिला। तब आपको फ़ोन पे, भीम, यूपीआई, बहुत सारी जो है इंडिया की जो अपनी लोकल ऐप्स हैं उन पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ये यूजेज उनका जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया। इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना सबसे मुश्किल होता है भाई अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ऐसे कंपटीटर्स होते हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि भाई आप उस मार्केट में जो है वो आए, आप जो है वो जो एक मार्केट शेयर है उसमें अपना 1% भी जो है वो बना सके। तो मेरा ख्याल है कि भाई सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अपने सॉफ्ट पावर के ज़रिए, सॉफ्ट इमेज के ज़रिए जो है ना आप डिफरेंट कंट्रीज़ को जब इस एक जो आपने नेटवर्क बनाया होता है उसके अंदर लेकर आते हैं, और ऐसा ऐसा 1 कंट्री, 2 कंट्री, 10 कंट्री जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कहें, बेशक आप अभी सर्विसेज जो है वो बगैर किसी चार्जेस के दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कंट्री को जो है ना उसका फ़ायदा जो है वो हो रहा होता है। अभी चले ना सही, जब मेरा ख्याल है कि भाई वीज़ा की बात कर लें, मास्टर कार्ड की बात कर लें, उन्होंने उस टाइम जब पूरी दुनिया में अपने कार्ड्स जो हैं वो सर्विसेज देना जो है वो शुरू की होगी, तब उन्होंने ये विजन ज़रूर बनाया होगा कि भाई अभी तो हम जो है वो चले एक लॉस मेकिंग कह लें या अपनी तरह से उसकी जो है जितनी भी फाइनेंसिंग जो है वो करनी पड़ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है हमें इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आज के टाइम में देखें, आपको वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, ये आपको पूरी दुनिया में जो है वो नज़र आते हैं। उसके अलावा चाइना का भी जो है वो भी आपको जो है एक मेरे ज़हन में अब उसका नाम नहीं आ रहा, चाइना का भी एक था, वो भी आपको जो है वो नज़र आता है। तो मेरा ख्याल है कि भाई आप अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट जब करते हैं तो आप जो है लोगों के अंदर जो है कितनी अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये बहुत मैटर करती है यार। और दूसरा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सुविधाएं आपको मिलती हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखें, हम लोग कोई भी कैश कैरी करना इतना सिक्योर नहीं समझता आजकल के टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया एक जो कैशलेस आप कह लो कि ट्रेंड की तरफ जा रही है। एक तो इन्वायरमेंट के लिहाज से भी वो बहुत अच्छा है अगर देखा जाए, दूसरा करप्शन के लिहाज से देखा जाए तो ट्रांजैक्शंस की हेराफेरी नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हर चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे मौज़म ने अभी बात की कि मतलब बेशक चार्जेस नहीं मतलब अप्लाई किए जा रहे, तो मतलब जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उन पर क्या कोई ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस नहीं होते होंगे यार? क्या? मेरा ख्याल है फिलहाल अभी यानी कि लगभग इंटरनेशनल जब आप ट्रांसफ़र करते होंगे उसमें आपको जो है जो एक रेट ऑफ कन्वर्जन होता होगा उस पर तो इम्पैक्ट पड़ता होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे सर्विसेज चार्जेस है ना वो शायद अभी ना लिए जा रहे हों। ओके, वैसे मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ऑब्वियसली अगर चार्जेस होंगे तो ही बेनिफिट जो है वो कंट्री को भी होगा ना। मेरा ख्याल है कि अभी जो है जैसे आपको भूटान, नेपाल, यूएई, मॉरिशस, फ्रांस, यूके, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ में या सिंगापुर, यहाँ पर जो है वो अभी नेटवर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मेरा ख्याल है कि इनफ कंट्रीज़ में जब आधी से ज़्यादा दुनिया में जब फैल जाए फिर मे बी कुछ फिक्स्ड चार्जेस जो है वो शायद जो है गवर्नमेंट लेना शुरू कर दे। अगर हम सिंगापुर की बात करें, फ्रांस की बात करें, यूके की या यूएई की बात करें, तो ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, ठीक है, और यहाँ पर लोग अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को। नो डाउट रेमिटेंस भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देती है। बहुत सारे लोग जब यूज़ करते हैं ऐप्स को तो खुद की कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बट अगेन मैं ये चीज़ जो है ज़रूर पूछना चाहूँगी, इनफैक्ट ये भी पूछना चाहूँगी कि जो लोकल यूज़ करते हैं यूपीआई, क्या उसमें भी कोई
चार्जेस होते हैं या बिल्कुल चार्जेस नहीं अप्लाई होते हैं? यहाँ पर मैं जो है ना एक छोटी सी जो क्योंकि- जहाँ तक मुझे समझ लगती है कि देखें फ्री की जो चीज़ होती है ना, लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, मैं ज़्यादा मानती हूँ। अट्रैक्ट होते हैं। एक अगर ऐप है उसके आपको जो है महीने के $2 या हर ट्रांजेक्शन पे जो है कुछ परसेंटेज जो है वो चार्जेस देना पड़ रहा, और एक तरफ ऐसी है जिसपे आपको जो है या तो बहुत कम या आपसे चार्ज ही नहीं किया जा रहा, तो लोग मेरा ख्याल है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे बैंक्स का सिस्टम होता हाँ। है, तो हम लोग अपनी बैंक की ब्रांच से कहीं से भी अगर एटीएम करवाते हैं तो उस पर कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन अगर हम कोई डिफरेंट ब्रांच ही एटीएम यूज करते हैं तो उस पर आपको 20 रुपए या 22 रुपए, कुछ 18 रुपए। लेकिन इस पे भी आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन शायद दे दूं, वो बैंक तो चार्ज करता है लेकिन वो पेमेंट जो होती है ना वो कार्ड कंपनी को जाती है। तो नहीं, मैं ये बात कर रही हूँ कि लेकिन चार्जेस तो आपको हाँ। एटलीस्ट पे करने पड़ते हैं ना। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मिनिमम चार्जेस क्या हैं या बिल्कुल फ्री है? और दूसरा, बिल्कुल मैं मौसम की इस बात से एग्री करूंगी कि जब वीज़ा कार्ड और बाकी सारी सर्विसेज स्टार्ट हुई होंगी, लेकिन और उन्होंने अगर चार्जेस नहीं भी लिए, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर मैं मान भी लेती हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो मुझे लगता है कि फिर भी एक कंपनी का एक विजन रहता है कि भाई हम लोगों ने इस मार्केट को किस तरीके से ग्रैब करना है, तो वो सारे प्रोसेस के दौरान मुझे लगता है कि वो अपना जो भी उनका प्रॉफिट होता है ना वो जनरेट कर लेते हैं उस चीज़ में। बाकी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने आपसे पूछे हैं। अफ्रीका में मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है जिस तरीके से जो होस्ट थे उन्होंने मतलब ये बात बोली कि अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वहाँ पर वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग भी जो है वो करना चाहते हैं। और इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से इंडिया ने G20 से G21 कर दिया है, यानी कि अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट को बीच में शामिल कर कर, तो डेफिनेटली एक बहुत रिस्पेक्टेबल आप कह लो कि जेस्टर भी जाता है अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ, और आपके टर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अगर हम लोग बिज़नेस की भी बात करें तो जैसे हम लोग देखते हैं कि बाइक्स को देखते हैं, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इंडियन बाइक्स यूज़ होती हैं, ऑटो भी मेरे ख्याल में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक आप कह लो कि एक कोलैबोरेशन होता है आपका डिफरेंट बिजनेस का भी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या डिफरेंस आपको लगता है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में आएंगी और यूपीआई को इस्तेमाल करके, या फिर इंडिया और अफ्रीका की जो ट्रेडिंग है उसमें क्या और इम्पैक्ट पड़ सकता है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इससे ज़्यादा में ज़्यादा मेरी वीडियो चैनल करें, वीडियो गुड बाय।